We launched our helicopter, gave them enough adequate warning shots as well. We tried every method by using our snipers. जो हमने हॉस्टेजेस बचाए थे वो कुछ ईरानियन और पाकिस्तान देशों से थे. The decision making ability and the confidence which the Navy has, which the country has vested in our units deployed at sea is fantastic. There were some very difficult decisions which had to be taken, especially when there was a hostage situation. जब वो वेसल को हमने फर्स्ट लोकेट किया तो वो पूरा मर्चेंट वेसल जो था वो मतलब पूरी तरह से आग की लपटों में घिर चुका था. फिर भी हमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस मर्चेंट वेसल की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हमने फ्लाई किया. मुझे ये नौसेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड अपने INS सुमित्रा के कमान दौरान जब हम लोग गल्फ ऑफ एडन में डिप्लॉयड थे ऑपरेशन संकल्प के पार्ट में, उसके लिए एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए मिला. और वो बहुत ही एक मेमोरेबल मोमेंट था, एक नर्व टेकिंग एक्सपीरियंस था जिसमें हमने अपने टीम वर्क के दौरान टीम वर्क की मदद से एक बढ़िया रणनीति अपनाई. 11 सोमाली पायरेट्स जिन्होंने करीब 2 फिशिंग बोट्स में अल नईमी और ईमान पे 36 लोगों को बंधक बना रखा था करीब 22 दिनों से, उनको हमने अपने प्रिसाइज फायरिंग, अपने कोअर्सिव टेक्निक और ऑपरेशनल मनूवर्स के द्वारा हमने उन्हें डिसेबल किया. ओवर 36 आवर्स व्हेन द प्रिसाइज फायरिंग हैपेंड, ऑल काइंड ऑफ कोअर्सिव मेजर वाज टेकन. दे वर नॉट सरेंडरिंग. Thereafter, we took the seamanship action of streaming the ropes with the tactical gear to disable their propellers, and thereafter they were forced to surrender without harming any hostage. What challenges were you facing there in brief? Challenges, the biggest challenge which we faced was to ensure safety of our own team and safety of hostages, because they were armed and they were destined to reach any level. They had in fact used the hostages as they've kept on the gunpoint, and it was a very difficult decision to order every shot which was fired. We launched our helicopter, gave them enough adequate warning shots as well. We tried every method by using our snipers, by using our embarked Marine Commando team to ensure that they give up. They took some time, but as it is said, when the going gets tough, the tough gets going, and so we could do that. Indian Navy की पूरे दुनिया में मिसाल हाल के दिनों में भी कायम की. फिर भी हम आपसे एक बार ये जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो है फ्यूचर के लिए, वर्क के लिए और तमाम चीज़ों के लिए प्रिपेयर की बहुत बड़े लेवल पर इंडियन नेवी है. तो उसके बारे में अगर कुछ भी आप शेयर कर पाएंगे. जिस तरह का ऑपरेशन हमने किया था, मुझे आज भी याद है हमारे श्री जयशंकर जी के शब्दों में कि वी आर द नेट security provider, not only for our friendly navy but for not so friendly navies as well. क्योंकि जो हमने हॉस्टेजेस बचाए थे वो कुछ ईरानियन और पाकिस्तान देशों से थे. आज के तारीख में जिस तरह से नौसेना ने अपना एक ऑपरेशनल टेम्पो बढ़ा के रखा है, टू बी ऑपरेशनली रेडी, सदैव तत्पर एवं तैयार, एक प्रचंड अखंड और निरंतर मिशन के लिए, उसके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके का सपोर्ट एक कमांडर एट सी को प्रदान किया जाता है वो अनमैच है. दैट इज फैंटास्टिक. द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड द कॉन्फिडेंस विच द नेवी हैज, विच द कंट्री हैज वेस्टेड in our units deployed at sea is fantastic and helps each commander at sea to take decisions and actions to safeguard our national maritime interest. So as you know, after the Israeli-Hamas conflict spread into the maritime domain, several merchant ships and merchant were under attack, and the Navy launched Operation Sankalp, and the aim of this operation was to deter piracy,
drone and missile attacks, and to ensure the safety of our maritime crew, which is on ships, and the crew which embark them, and to be poised to render any assistance. So just to describe the scale of this operation, it was done over an area of 51 lakh square kilometers, which included the Gulf of Aden, the Arabian Sea, parts of the South and West Indian Ocean. And to put that into perspective, that is 1.5 times the landmass of India. So it was an unprecedented operation for which about 21 ships deployed with about 5,000 personnel. As you know, there are a number of operations which happened, and many of these operations were happening concurrently. That means there was anti-piracy operations going on somewhere, there was firefighting going on somewhere, anti-narcotics, drone and missile attacks going on somewhere, medical evacuation. So one had to, have a method so that all these operations could be executed successfully. And there were some very difficult decisions which had to be taken, especially when there was a hostage situation. The pirates were armed, willing to fire. So we had to defeat the pirates by fighting their minds. And that required some difficult decisions. And we came out clean without a single casualty, as you're aware. Also, for the very first time, an airdrop of Marine commanders was done at 2,500 kilometers from the Indian shores, which required extensive coordination. And lastly, logistics. When you deploy 21 ships in such a large area, their fueling cycles, their logistics, their ration requirement, and everything has to be met so that they are able to do their missions correctly. This award has been given to me for the mission of search and rescue, which we conducted in Red Sea. ये मिशन हमने 6 मार्च 2024 को किया था, जहां पे हुतीज अटैक के दौरान एक मर्चेंट वेसल ट्रू कॉन्फिडेंस का जो क्रू था, उन्होंने मिसाइल ने इस मर्चेंट वेसल को डायरेक्ट हिट किया था और उनके क्रू ने काफ़ी ज़्यादा इंजरी सस्टेन किया था. सो जब मैं कोलकाता पे एम्बार्क था एज डिटैचमेंट कमांडर ऑफ हेलीकॉप्टर, सो हमें ये एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि किसी रफ लोकेशन पे एक मर्चेंट वेसल हिट हुआ है, एंड देयर वाज नो फर्दर इन्फॉर्मेशन, देयर वर नो मोर डिटेल्स विच वर गिवन टू अस. But as Indian Navy, we were the first responders for this information, और हम उस लोकेशन की तरफ आगे बढ़े और मात्र 15 मिनट के अंदर मैंने अपने हेलीकॉप्टर को लॉन्च किया. और जब वो वेसल को हमने फर्स्ट लोकेट किया तो वो पूरा मर्चेंट वेसल जो था वो मतलब पूरी तरह से आग की लपटों में घिर चुका था. फिर भी हमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस मर्चेंट वेसल की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हमने फ्लाई किया, जस्ट टू मेक श्योर कि कहीं पे कोई उसका मर्चेंट वेसल का क्रू होगा, अगर उसको हमारी मदद की जरूरत है तो हम मदद कर पाएं. वंस इट वाज वेरी क्लियर टू अस कि अब इस शिप पे किसी क्रू का होना संभव नहीं है, सो वी कंटिन्यू टू सर्च इन द ओपन सी एंड वी कंटिन्यू टू गिव आरटी कॉल्स. एंड एज लक वुड हैव इट, द मास्टर ऑफ दिस वेसल वाज ऑफ इंडियन ओरिजिन, and he responded to our calls when he got to know that Indian Navy is in the air and they were searching for him. So he contacted us on RT and he relayed a critical information that इस merchant vessel के 21 crew एक छोटी सी नौका में इंजर्ड हैं और वो अड्रिफ्ट हैं ओपन सी के अंदर, एंड दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर पोजीशन बट दे नीड इमीडिएट हेल्प. So at that point of time we had to take a critical decision to continue our search against the weather, against the strong winds, against the time constraint, the fuel constraints जो हमारे पास थे. We continued the search and we were able to locate this life raft, जिसके अंदर वो 21 लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा फायर और उसकी वजह से इंजर्ड हो चुके थे, उनको हमने लोकेट किया. एंड देयर आफ्टर, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम मदद आने का इंतजार करते, किसी और देश की नेवी की शिप के आने का इंतजार करते. सो वी कंटिन्यूड द ऑपरेशन. मैंने 8 लोगों को हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट किया एंड INS कोलकाता की जो बोट्स थी उन्होंने बाकी 13 जो लोग थे जो ज़्यादा इंजर्ड थे उनको वेकेट किया, और हमने उन 21 क्रू जो कि इंजर्ड थे उनको नियरेस्ट पोर्ट जो जिबूती था वहाँ पे हॉस्पिटलाइज करवाया. सो इंडियन नेवी ने इंश्योर किया कि जो सी फेयरर्स हैं ओपन सी के अंदर, हम हमेशा उनकी हेल्प के लिए तत्पर रहे, और हमने ये मिशन को जो है अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके अंजाम दिया. दिस वाज बिकॉज ऑफ आवर टीम वर्क एंड प्रोफेशनलिज्म. हमारा ऑपरेशन 2 फरवरी 2024 में हुआ था,
दिस वाज अ हाईजैकिंग सिचुएशन। एक एफवी ओमारी करके एक फिशिंग वेसल थी जिसको हाईजैक कर लिया गया था सोमाली पायरेट्स ने। उस वेसल पे टोटल 20 फिशरमैन थे एंड उनको 7 पायरेट्स ने हाईजैक करके वेसल को वो लोग कमांडियर करके दे वर टेकिंग इट टुवर्ड्स सोमालिया। हमारी जो शिप थी आईएनएस शारदा उसने उस वेसल को इंटरसेप्ट किया। देयर आफ्टर जो हमारी टीम थी मरीन कमांडोज की 8 लोगों की टीम, वी वर लॉन्च्ड इन अ रिब विच इज अ रबर इनफ्लेटेबल बोट। देयर आफ्टर वी अप्रोच्ड द वेसल विद टैक्टिकल स्टेल्थ। इट वाज लॉन्च्ड विद फर्स्ट लाइट, सुबह जल्दी किया गया था सो दैट हमारे पास सरप्राइज रहे एंड वी कैच देम नैपिंग। वंस वी अप्रोच द वेसल वी वर एबल टू क्लोज इन क्विकली एंड जो वेसल उस वक्त चल रही थी अबाउट 10 नॉट की स्पीड से, हमने उनके साथ में अपनी बोट को रखा एंड देयर आफ्टर वी अंडर द थ्रेट ऑफ फायर हमारे पास वेपन्स लोडेड थे एंड दे वर ऑल लुकिंग एट अस एंड देन वी आस्क्ड देम, वी शाउटेड एट देम continuously to slow down and finally we were able to board the vessel. When we boarded the vessel we realized although we could see the weapons, we got a lot of weapons. हमने उनके पास में RPG भी पकड़ा था and we realized कि उस पे एक already pirates ने एक fisherman को मार दिया था already and the rest 19 of them were saved and we were able to overpower the pirates and tie them down and thereafter we left them on board a ship and which was sent back to Somalia. चैलेंजेस के बारे में इस ऑपरेशन में और जो आप फेस करते हो उसके बारे में। जनरली ऐसे ऑपरेशन में हमारे पास 2 रिब्स रहती हैं। उस टाइम पे हमारे पास एक ही अवेलेबल थी, बैकअप हमारे पास नहीं था। हमारी जो शिप थी वो पास में थी बट अबाउट आप लगा लीजिए 1 किलोमीटर दूर होगी, तो अगर उनसे कोई फायर खुलता है तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ब्लू ऑन ब्लू भी हो सकता है। एंड चैलेंजेस बाकी दैट द पायरेट्स वर ऑल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड इसमें बहुत कुछ गलत हो सकता है। आप जब उनके पास पहुंच रहे हैं तो कोई इन द फियर ऑफ कि उनकी जान जाने वाली आप पे फायर खोल सकते हैं। सो वी वर रेडी, आवर टीम वाज प्रिपेयर्ड एंड वी हैड अ वेपन्स कॉक्ड एंड वी वर रेडी दैट एनी फायर फ्रॉम देयर साइड विल बी retaliated with equal response.